Assalamu alaikum, dear students. Today I'm going to start lecture number 3 on DBMS SQL Server. Before this lecture, in lecture 2, I have discussed some basic commands of SQL Server. इसमें हमने बात की थी सेलेक्ट कमांड की। अगर आपको याद हो तो सेलेक्ट कमांड जो है या इसके थ्रू जो है हम किसी भी टेबल के अंदर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो हमने आपको डिटेल से बताया था कि आप किस तरह सेलेक्ट के थ्रू कॉलम से डाटा को रिट्रीव करेंगे। तो ये जो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, वी हैव एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अंदर फिर डिस्टिंक्ट का क्लास हमने यूज़ किया था, वेयर को हमने यूज़ किया था, एसक्यूएल एंड आर को हमने यूज़ किया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव यूज्ड बिटवीन क्लॉज। एंड आज जो है हम स्टार्ट लेंगे बिटवीन से। इसके बाद ऑर्डर बाय क्लास है, like class and group by class, SQL count class and having class. ठीक, so we will try to cover all these queries in detail practically. So I hope कि आपको पिछले लेक्चर की समझ आई होगी. So now I'll proceed with these new SQL class or commands. So let me click start DBMS Microsoft SQL Server Management Studio. Okay, click the connect button. If you remember, our database name was university. Expand this and click on the table icon, and here is your table, customer. So right click on the customer table and then click on the select top 1000 rows. So here you can see on the screen, this was your table, customer table. Here you can see it on the screen. Okay, so this was SQL query. Let me revise one of the query of select star from customer table. So highlight this one and execute. Here you can see the full table on the screen. So gentlemen, today we will discuss some more queries. Here you can see. So I will take start from SQL between class. between में आप क्या करेंगे कि सपोज आप चाहते हैं कि मैं कस्टमर आईडी 13 से लेके 17 तक या 13 और 17 के बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मैं उनको एक्सेस करूं. So here you will type select star means everything from customer where customer ID between 13 and 17. Click on this select button, execute this. So here you can see this is ID number 13 and this is 17. So clearly it shows that
it selects the customer ID between 13 and 17. Remember that 13 and 17 will be included in this list. Okay, so this was the between the class. Again, select asterisk everything from customer. By everything means all the columns. Okay, if you want to modify this query, you can click on the cust name कॉमा पोस्टल कोड, यानी आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स का डाटा नजर आए 13 और 17 के बीच में. सेलेक्ट एग्जीक्यूट. सो हियर यू कैन सी रजा 13 पे है और अम्ट जो है वो 17 पे है. सो वी सा the data between 13 and 17. Okay, this was the between class. Okay, the sixth one is equal order by class. अब order by का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं टेबल का डाटा जो है like select columns from table where. Now the condition जो है, suppose the condition is that you want data between 13 and 17, order by the column name. अब condition अगर आप ना भी लगाएं, आप orderly उनको व्यू कर सकते हैं. यहाँ पे है ASC and DSC. ASC means ascending order, DSC means descending order. So it means that you can order them with ascending or descending order. Okay, let me try on this class. Select. Okay, let me copy this query from here to here. इसको मैंने कॉपी किया. Select customer name, postal code from customer, order by postal code. ओके. अच्छा, यहाँ पे हाँ कंडीशन हम लगाएंगे वेयर कस्टमर आईडी जो है वो इज ग्रेटर देन सपोज 12. यानी हमने ये कहा हुआ है कि सेलेक्ट कस्टमर नेम पोस्टल कोड फ्रॉम कस्टमर वेयर. अच्छा, सॉरी कंट्रोल जेड करें इसको. ऑर्डर बाय, यहाँ पे हमने बाय का छोड़ दिया है क्लास. ओके, सो सेलेक्ट customer name postal code from customer table, order by postal code. Now is it correct or not? Yes, it is giving the data. Okay. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, वो ये है कि ऑर्डर बाय पोस्टल कोड हो लेकिन वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग. ठीक है. सो अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो आप टाइप करें ASC. अब असेंडिंग ऑर्डर ये है कि ये स्टार्ट होगा कम से और जाएगा ज़्यादा तक. सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये असेंडिंग इसने दिया है बाय डिफ़ॉल्ट. लेट मी चेंज इट टू डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग में ये क्या करेगा, ये देखें, ये डाटा इसने जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है. ठीक है. सो if I modify it with the star symbol, so now check the result. Okay, select everything with postal code in descending. So postal code जो है ना वो descending में है.
सो पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल के अंदर, पूरे रिकॉर्ड जो हैं वो भी इस पोस्टल कोड के साथ जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कस्टमर आईडी 13 या 11 पहले था, लेकिन जो इनकी अब 4000 वाला पोस्टल कोड यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो साथ पूरा जो 16 अहमद वो भी साथ चेंज हो गया है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर बाय क्लास, यानी यहाँ पे आप जो है ना डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं बाय specifying a specific order of ascending or descending. Okay, now let me jump towards another clause that is called SQL like. So like जो है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऐसे रिकॉर्ड को सर्च करना है जिसका हमें पूरा नाम याद नहीं है, किसी किसी एंट्री का हमें पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन हमें जिस उसका कुछ पैटर्न याद है। लेकिन सपोज़ नाम है सपोज़ उमर, और हमें जो है वो उमर का सिर्फ यू और एम याद है कि मतलब कोई यू एम सा नाम था, यू एम से स्टार्ट हुआ था। So in that case, UM is the pattern, and we can search that name Umar using that pattern UM. Okay, so let me explain this query. Select the column name, column 1. Now let me run this practically. Well, here you can see if I want to search for a name that is suppose Ahmad. So what would I do? That I will simply uh, run this query. Okay, select the column name from table, where column name, then like the pattern, well, where the column name and then like pattern. Okay, so let me write the complete query. Select asterisk from customer table, where, ठीक है, where कस्टमर, अब अहमद जो इनके कस्टमर नेम के कॉलम में है। ठीक है, सो वी विल एंटर कस्ट नेम लाइक सिंगल कोट्स लिख के, सपोज अगर आपने उमर को फाइंड करना है तो यू एम, और इसके बाद इसको आप करें एंड। ओके, यानी मुझे एक ऐसा कस्टमर नेम चाहिए जो कि यूएम की तरह हो। ठीक है, जिसका पैटर्न यूएम हो। ओके, so click on this and execute. Well, there is no such pattern exist, so the reason why that we have to, अब um के बाद भी कुछ है, उमर नाम है तो um के बाद हमारे पास a और r है, तो for a and r we will put this percentage symbol. Execute this. Now you can see that all the records are returned, all that attributes are returned, and where the cust name is UM pattern. अच्छा, एक और काम ये कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे लगा दें परसेंट सिंबल, ओके, और यू को हटा दें, so it says that there will be a name with M in the middle, और M से थोड़ा सा पहले और M के बाद भी कुछ होगा, यानी ये पैटर्न होगा। ठीक है, तो in that case execute this. Well, here you can see all the records except 15. अब हर जगह पे अगर आप देखें M मौजूद है, यहाँ पे भी अहमद में M है, उमर में M है, रज़ा अहमद में भी M है, everywhere there is M included, but 15 जो था यहाँ पे 15 नहीं आया, because now let me check that why 15 is not there. Execute this.
15 नेम वाज निजात, सो निजात में एम नहीं है, सो इसलिए उन्होंने उसको रिटर्न नहीं किया। थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे एंटर करें आप जे। अब क्या होगा, एग्जीक्यूट। अमजद और निजात दोनों में जे है, यानी जे से पहले भी कुछ है और जे के बाद भी कुछ है, तो ये है दिस परसेंटेज सिंबल मीन्स दैट समथिंग बिफोर द जे एंड समथिंग आफ्टर द जे। तो ये पैटर्न इसे कहते हैं पैटर्न। ओके। अच्छा, एक और काम आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है फाटा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं लिखूं अंडरस्कोर सिंबल ए underscore symbol a, it means that return a pattern or name which look like this। यानी यहाँ पे एक लेटर होगा, इसके बाद ए होगा, फिर कुछ कोई लेटर होगा, इसके बाद अगेन ए पे वो ख़त्म होगा। सो लेट मी रन दिस। यहाँ पे कस्टमर नेम लाइक FATA, is it FATA or not? अब ये जो है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर ये है कि कस्टमर नेम नहीं, यहाँ पे है कस्टमर एड्रेस। यानी कस्टमर एड्रेस चूँकि हमारे पास ये है पार्ट हाउस में आ रहा था, तो आपने एग्जैक्टली उस एट्रीब्यूट का यहाँ पे नाम लिखना होता है जिसका पैटर्न सर्च करना चाहते हैं। बिकॉज प्रीवियस वन लाइक क्यूरी वाज फॉर कस्टमर नेम, ये जो है कस्टमर एड्रेस के लिए है, तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस। एग्जीक्यूट करें। So here you can see FATA and FATA. So the customer address with FATA names are returned because the pattern was like this one. So this was the query of the like class. Now we will proceed with some more uh, SQL class, that is group by। ओके, ग्रुप बाय क्लास। ग्रुप बाय का मतलब ये है कि सेलेक्ट, इसके बाद सम और कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन एंड ग्रुप बाय कॉलम नेम। ओके, इट्स a bit complex for the new SQL query learners। आप क्या करेंगे, देखें, सेलेक्ट, यहाँ पे चले कॉलम नेम आ जाएगा, ठीक है, फिर टेबल नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कंडीशन आएगा एंड ग्रुप बाय कॉलम नेम। ग्रुप बाय का मतलब ये है कि जब हमारे पास, लाइक इस एग्जांपल में अगर आप देखें, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो कराची का वर्ड है या नेम है वो 2 दफ़ा है। इस तरह फाटा का नाम जो है ना वो भी 2 दफ़ा है। इट मीन्स कि ये हमारे पास, इसकी हम ग्रुपिंग अगर करेंगे तो एक ग्रुप हमारे पास इनका बन जाएगा, इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा कराची का, इस तरह लाहौर का अलग ग्रुप बनेगा, अटक का और पेशावर का अलग बनेगा। तो इट मीन्स दैट अगर हमारे पास कोई नाम जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है तो उसका ग्रुप नेम एक ही कंसिडर होगा। ओके, सो लेट मी क्रिएट अ क्यूरी फॉर दैट ग्रुप बाय दैट कॉलम नेम। यानी हमारा इस केस में कॉलम नेम क्या होगा, कस्टमर एड्रेस। सो लेट मी राइट अ क्यूरी, अगेन सेलेक्ट, चले इफ आई राइट सेलेक्ट कस्टमर एड्रेस सॉरी कस्ट एड्रेस फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर customer ID
is greater than or equal to, चलिए greater than कर दें 11 group by cust address। ओके देखिए मेरा जो क्यूरी का मकसद है वो ये है रन करने का कि मैं कस्टमर एड्रेस जो है ये कॉलम नेम है, इसकी मैं ग्रुपिंग मालूम करूँ कि ग्रुप बाय दिस वन। और कस्टमर आईडी 11 का मतलब ये है एड्रेस कि 11 से चले ज़्यादा, यानी पेशावर को इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इस एक रो को। इस एक रो के बाद जितने भी रोज हैं इनकी ग्रुपिंग करो बेस्ड ऑन व्हाट दीज एड्रेसेस नेम्स। ओके और हमें रिजल्ट में सिर्फ ये एड्रेस ही शो होगा। ओके सो क्लिक ऑन दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। देखें अब एक ग्रुप हमारा है अटक का, दूसरा है फाटा का, कराची का और लाहौर का। सो चलिए इफ आई रिमूव दिस ऑप्शन फ्रॉम हेयर, दोबारा देखें। अब देखें पूरा पूरा दिया है कि कस्टमर एड्रेस हमें शो करो ग्रुप बाय कस्टमर एड्रेस और कस्टमर एड्रेस की ग्रुपिंग ही करो। सो बाय ग्रुपिंग इट मींस दैट हमारे पास कितने ग्रुप बनते हैं हर एक नाम के। तो फाटा क्या, फाटा का हमारे पास एक। अच्छा अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास फाटा जो है वो कितनी मरतबा रिपीट हुआ है या कराची कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट क्लास है काउंट का, काउंट। ओके और साथ ही कस्टमर एड्रेस भी लिख दें, एग्जीक्यूट। हाँ यहाँ पे देखें काउंटिंग तो हो गई लेकिन साथ हमें कस्टमर एड्रेस भी शो करें। ओके एग्जीक्यूट। अटक जो है वो सिंगल टाइम है, फाटा जो है वो 2 टाइम्स है, कराची 2 टाइम्स, लाहौर 1 टाइम, पेशावर इज 1 टाइम। देखें सेलेक्ट, अब काउंट की तरफ मैं अभी इसके बाद आऊँगा। काउंट क्या करता है, काउंट जो है ये सिंपली जिस भी कॉलम के ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आप लिख के काउंट, इसके बाद ब्रैकेट्स लिखें तो ये इसको काउंट करेगा, यानी कितने ये आ, इसके रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है तो ये काउंटिंग करता है। अभी मैं इसकी तरफ आऊँगा अभी। तो फाटा के हमारे पास 2 हैं। दिस कस्ट एड्रेस मीन्स कि हमें ये एट्रीब्यूट डिस्प्ले करें एंड ग्रुप बाय दिस वन, ग्रुपिंग हमारे पास ये है कि फाटा का ग्रुप है, कराची का एक ग्रुप बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप बाय क्लॉज। अब आते हैं केवल काउंट क्लास की तरफ। काउंट अगेन टेल यू कि कॉलम नेम लिखें और उससे पहले टाइप करें काउंट। सो इट विल सिंपली काउंट the records in that specific column, and you can also put a condition here if you want. Let me show it to you the whole table and let me count uh, the number of records in this table। तो ये कितने हैं, 7 है। तो how would you apply the count command, select count on cust id, customer id, इसको आप काउंट करें कितनी है। Is it a customer ID? Yes, it's upper case है customer ID। इसके बाद क्या करें, कस्टमर नेम शो करें फ्रॉम कस्टमर टेबल। कंडीशन लगाएं या ना लगाएं, चलिए कंडीशन नहीं लगाते, सिंपल काउंटिंग करेगा। well there is some mistake, let me check it, where is the mistake, count column name, okay, from table where condition should be there, okay।
where customer ID is greater than or equal to 11. Okay, this is the condition. Again, where is the mistake? The mistake यहाँ पे है कि we should remove this one because it will count the customer IDs where the customer ID is greater than or equal to 11. Okay, select this one, execute this one, and the result is 7. Okay, यानी हमारे पास टोटल जो है ना वो 7 कस्टमर आईडीज हैं. ठीक है, here you can verify it. Select this one and execute this one. So these are 7 records. Okay, आप किसी भी जो है ना एट्रीब्यूट के ऊपर आप काउंट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ओके, okay, gentlemen, apart from this we have some more SQL queries. काउंट है, हैविंग है, इनके अलावा और भी कुछ हमारे पास क्यूरीज हैं. इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर आई विल ब्रीफ यू ऑन ऑल दीज कमिंग क्यूरीज. आज के लिए इतना काफ़ी है. होप आपको ये जो सारे क्यूरीज हैं याद रहेंगे, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.